Welcome to lecture number 11 of thermodynamics. The key objective of today's lecture are develop the conservation of mass principle, apply the conservation of mass principle to various systems including steady and unsteady flow control volumes, apply the first law of thermodynamics as a statement of the conservation of energy principle to control volumes. Then comes identify the energy carried by a fluid steam crossing a control surface as a sum of internal energy, flow work, kinetic energy, and potential energy of the fluid, and to relate the combination of the internal energy and flow work to the property enthalpy. Solve energy balance problem for common steady flow devices such as nozzles, compressors, turbines, throttling valves, mixers, heaters, and heat exchangers. Apply the energy balance to general steady flow processes with particular emphasis on the uniform flow process as the model for commonly encountered charging and discharging processes. So this lecture is mainly focusing on the conservation of mass principle, in which we are going to study that as energy is being converted from one phase to another phase, but it is conservative, so the mass is also being conservative and it cannot be created nor be destroyed. We are going to study this principle in the first objective. Then we will move towards the conservation of mass principle in various systems which are going to be included like steady systems and unsteady systems of control volume. Then we are going to study the first law of thermodynamics as a statement of conservation of energy principle for control volumes. So we are going to make the concept of control volume, and then we are going to study different type of conservation of that specific concept, that is control volume. उसके बाद जो है जी आइडेंटिफाई द एनर्जी कैरिड बाय अ फ्लूइड सिस्टम क्रॉसिंग अ कंट्रोल सरफेस. एनर्जी कैरी किस तरह से होती है, वर्क काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क या इंटरनल एनर्जी को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इंथैल्पी को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसको देखेंगे. So starting with the first objective of today's lecture, that is conservation of mass. Mass is like energy is a conserved property and it cannot be created and not be destroyed during a process. When we are performing a thermodynamic process on a specific system, then mass cannot be created nor be destroyed, but it is being utilized from one state to another state. Then comes the concept of closed system. The closed system is basically the mass of the system remains constant during if the mass of the system remains constant, like हमने एक प्रोसेस शुरू होने से पहले हमने मास लिया 5 kg और वो 5 kg कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस के दौरान. मतलब हम लेट्स सी मैं ये कहता हूँ कि हम हीट अप कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम को, तो वो ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक प्रोसेस रूटीन का जो प्रोसेस होगा उसमें उसका मास अगर 5 kg ही रहता है तो वो क्लोज सिस्टम कहलाता है. Then comes control volumes. Control volume is basically mass can cross the boundaries, and so we must keep track of the amount of the mass entering and leaving the control volume. Control volume में ये होता है कि आपका mass जो है वो boundaries से cross कर सकता है, उसमें मतलब continuous intake भी हो रहा होता है, continuous out भी हो रहा होगा, लेकिन आपका एक specified आप एक volume decide कर लेते हैं. वो volume जो है जैसे आप boundaries decide कर लेते हैं कि ये मेरा control environment है और उस इन्वायरमेंट को आप कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं. उसके अंदर रहते हुए आप सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे शो की गई है. अगर हमारे पास 2 kg H2O और 16 kg आपके पास O2O, तो वो मिलके 18 kg H2O बनाएंगे. Mass M and energy E can be converted to each other according to the following equation, that is very well known equation. E is equal to mc square, where c is basically the speed of light in vacuum and its value is approximately 3 into 10 raised to power 8 meter per second. If we are putting the value of c here, then we are going to have 9 10 raised to power approximately 10 raised to power 16. So this value is very large. So value of mass and energy would be
एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल इन दैट केस। उस केस में आपकी ई और एम की वैल्यूज जो हैं वो बहुत नेग्लिजिबल ही हो जाती हैं, कम हो जाती हैं जब आप सी की वैल्यू पुट करते हैं। सो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैस एंड वॉल्यूम फ्लो रेट्स। सबसे पहले हम मैस और वॉल्यूम फ्लो रेट के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो स्टडी करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स को जब हम इनका स्टडी कर चुके होंगे, नोट डाउन कर चुके होंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि आप इसको फर्दर किस तरह से यूज कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में। सो डेल्टा एम डॉट मैस फ्लो रेट की जो चेंज है दैट इज इक्वल टू रो, दैट इज योर डेंसिटी, Vn is your velocity, normal velocity, DAC is your area basically, differential of your area। C से मुराद आपका कंट्रोल है। तो आप जो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफाइड एरिया होगा, उस एरिया को DAC के साथ शो किया गया। जैसे इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो डॉटेड लाइन है ये एक डिसाइड कर रही है एरिया को, और ये एरिया किस चीज का है, आपकी एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे बन रही है, एक आपकी बाउंड्री लाइन यहाँ पे बन रही है। जब आपका फ्लो, ये पाइप है, पाइप के अंदर से फ्लो गुजर रहा है, जब आपका फ्लो गुजरेगा तो आपके पास जो वेलोसिटी की प्रोफाइल बनेगी वो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह की बनेगी। जो एंड्स होंगे उनके ऊपर वेलोसिटी कम होगी, और दरमियान में जो आपकी पाइप फ्लो होता है उसके दरमियान में आपकी वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने एक एरिया ज्यूम कर लिया, उस एरिया के जो जो उस स्पेसिफाइड एरिया का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू वी डॉट, और उसका जो एरिया है वो ए सी के इक्वल है। अब दोबारा इस इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो आपके पास मैस फ्लो रेट का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू रो वी एन डी ए सी। ये किस तरह से आया जी, हमारे पास चूंकि रो जो है, रो बेसिकली आपके पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप मैस पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, आप मैस को अगर राइट साइड पे रहने दें तो वॉल्यूम को वहां पे ले जाएं तो रो वी के इक्वल बनेगा जी। ये रो वी के इक्वल बनेगा। रो वी को अगर हम फर्दर 2 या 3 डायमेंशंस में वी को हम लिख सकते हैं। उनमें से एक डायमेंशन हमने एक्स, लेट्स सी हमने यहीं पे रखा, वाई और जी को इनकॉर्पोरेट करके एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया। अब जो x है उसको जब हम t के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लो रेट है तो यहाँ पे भी t आएगा राइट साइड पे भी। जब हम t के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो फैक्टर बनेगा, ये जो वेरिएबल बनेगा, ये आपके पास वेलोसिटी बनेगी, और ये वेलोसिटी आपकी एवरेज वेलोसिटी भी कहलाती है। एवरेज वेलोसिटी को जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है उसके साथ किस तरह से रिलेट किया जाता है, उसका ये फॉर्मूला है, v average is equal to a over area of that controlled environment एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी एंड डी ए सी। आपकी जितनी भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही वेलोसिटीज होंगी वो उनकी आप इंटीग्रेट करेंगे और एरिया के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वी एवरेज आ जाएगा, डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो मेरे पास अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो इस साइड पे ये जो आपके पास डिफरेंस है या डिफरेंशियल है या डेल्टा है वो खत्म हो जाएगा। एम डॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फैक्टर। इसमें आपकी रो आ गई, वी एन आ गया, डी ए सी आ गया। रो को अगर हम बाहर ले आए तो आपके पास रिजल्टेंटली जो चीज बचती है वो है इंटीग्रेशन ऑफ वी एन विद रिस्पेक्ट टू डी ए सी such that area AC, या we are going to consider area AC. AC is controlled area। तो इसमें यहाँ पे डेंसिटी अगर बाहर ले आए तो आपके पास अंदर ये दो फैक्टर्स बचते हैं। सेम इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो V एवरेज मल्टीप्लाइड बाय AC करें तो आपके पास जो बाकी चीज बचती है वो इंटीग्रेशन ऑफ Vn विद रिस्पेक्ट टू DAC, इंटीग्रेशन ऑफ Vn विद रिस्पेक्ट टू AC बनती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो आपके पास V एवरेज AC आ जाएगी, रो V एवरेज AC। ठीक है जी, रो V एवरेज AC जब आपके पास आ जाती है तो ये किलोग्राम पर सेकंड के केस में, किलोग्राम पर सेकंड का केस है जी। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी में टाइम डिवाइड हो रहा होता है और ऊपर आपकी कोई एक डायमेंशन होगी। एरिया आपके पास है
जो क्रॉस सेक्शनल एरिया या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का आपके पास एरिया एक स्पेसिफाइड, जिसको आप यहाँ से एवेलुएट कर सकते हैं डायमेंशंस के थ्रू। तो आपके पास एरिया भी आ गया, एक डायमेंशन भी आ गई, तो इन तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, टी की वजह से वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। ठीक है, तो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। अब रो जो है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल भी होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या होता है जी, वॉल्यूम पर यूनिट मास, और रो के केस में क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसको रेसिप्रोकल की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वी वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब ये वी जो डॉट है हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये आपके पास असल में आपके वी एंड डी ए सी को आप वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। इसको हमने एवेलुएट किया था कि इसको हम वी एवरेज ए सी के भी लिख सकते हैं, और वी एवरेज ए सी को आप वी ए सी जनरलाइज भी लिख सकते हैं। इसको एवेलुएट किस तरह से कर सकते हैं, इस फिगर के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास नॉन वैल्यू सारी हो जाएंगी और आप मास फ्लो रेट को जो है वो निकाल सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, इसमें एलेबोरेट किया गया है कि आपका जो मास है वो कंजर्व रहता है। आप एक कंट्रोल वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो कंट्रोल वॉल्यूम में आपका जितना मास इन हो रहा होता है माइनस जितना आपका लीव हो रहा होता है, यानी उस एक कंट्रोल वॉल्यूम से जितना मास आपका उसमें इन हो रहा होगा और जितना उस कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जा रहा होगा, आउट हो रहा होगा, इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास विद इन कंट्रोल वॉल्यूम जो आपके पास मास अवेलेबल है वो आप निकाल सकते हैं। तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, द नेट मास ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू द नेट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग डेल्टा टी। इस एग्जाम्पल को किस तरह से शो किया, ये हमारे पास जो है वो बाथिंग टब है जिसमें आपकी फिलिंग हो रही है और उसका मास फ्लो रेट जो है या मास जो इन हो रहा है वो है 50 kg, और जो मास आउट हो रहा है वो आपके पास 30 kg है। तो रिजल्टेंटली आपके पास यहाँ पे ये जो कंट्रोल वॉल्यूम बनेगा, जो टब है आपका, उसके अंदर मास इन मास माइनस मास आउट दैट इज 20 kg। तो आपके पास डेल्टा एम इन बैथ टब इज इक्वल टू 20 kg। इन दोनों का इन और आउट का जो माइनस है या डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा। इसको जब आप इक्वेशन की टर्म में लिखें, फ्लो रेट की टर्म्स में इक्वेशन बनाएं इसकी, तो ये बनती है टोटल मास एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग डेल्टा टी माइनस टोटल मास लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम during delta t, and that is equal to net change in mass within the control volume during delta t। इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं, m in माइनस m आउट इज इक्वल टू डेल्टा m ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। इसको फर्दर अगर आप रेट की टर्म्स में लिखना चाहें तो जितना आपका मास फ्लो रेट इन है माइनस मास फ्लो रेट आउट दैट इज इक्वल टू difference of mass control difference of mass of control volume during that specific with respect to that specific time। तो आप इसको इस तरह से डेरिवेटिव की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जनरल कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आप जनरल कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो आपके पास इसकी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स को कंबाइन किया जाता है। मास फ्लो रेट की टर्म में डी ओवर डी टी आ जाता है, और जो मास इन है वो आपका रो इंटू डी वी के इक्वल होगा। सेम इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस आप करेंगे जी, आपके पास जो एक आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम है, दूसरा क्लोज सिस्टम है, तो ये क्लोज सिस्टम के केस में आ जाएगा और ये आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम के केस में आ जाएगा। एंड दैट इज यू आर गोइंग टू सम अप these two factors, then it will be equal to 0। जनरल कंजर्वेशन ऑफ मास इन रेट फॉर्म दैट इज इक्वल टू, जब आप सिर्फ कंट्रोल वॉल्यूम की बात करेंगे तो कंट्रोल वॉल्यूम के केस में क्या होगा कि आपके पास जो ये वाली टर्म है ये यहीं पे रह जाती है और ये टर्म वहां पे क्या हो जाती है दूसरी साइड पे जाके, जो आपके पास कंट्रोल सिस्टम अंदर बन रहा है उसमें आपके पास दो तरह से मैसेज आ रहे हैं। एक समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैसेज इन माइनस समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैसेज आउट। ये आपका जनरल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ मास की रेट की फॉर्म में। ठीक है जी, इसको फर्दर आप
इस तरह से रीअरेंज भी कर सकते हैं, dmc divided by dt that is equal to summation of all type of masses in mass flow rate in minus में आपके पास जितना mass flow rate आउट हो रहा होगा उसकी समेशन ले लेंगे। ये समेशन किस तरह से काउंट होती हैं? अभी हमारे पास एक ही इनलेट था और उसी के थ्रू आपका मैस जो है वो इन हो रहा था, और एक ही आउटलेट था जिसके थ्रू आपका मैस जो है वो आउट हो रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल इनलेट्स हों और मल्टीपल आउटलेट्स हों, तो इस वजह से इसमें समेशन का साइन जो है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यह है जी मैस बैलेंस फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस। स्टेडी फ्लो में आपका जो प्रोसेस है वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेडी फ्लो से मुराद ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपकी कांस्टेंट रहती हैं और चेंज नहीं हो रही थी। ड्यूरिंग अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द टोटल अमाउंट ऑफ मैस कंटेन्ड विद इन अ कंट्रोल वॉल्यूम डज नॉट चेंज विथ टाइम। आपके पास जो कंट्रोल वॉल्यूम होता है वो टाइम के साथ उसका चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है जी। जो उसके अंदर मैस आपका इनकॉर्पोरेटेड, लाइक हमारे पास ये अगर कंट्रोल वॉल्यूम है, इसके अंदर एक स्पेसिफाइड अमाउंट का मैस है, तो वो मैस आपका थ्रू आउट द टाइम जो है वो mcv जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। आपके पास मैस इन भी हो रहा है और मैस आउट भी हो रहा है, लेकिन आपके पास जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो उसके अंदर जितना मैस है वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ये कहलाता है जी मैस बैलेंस फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस। Then the conservation of mass principle requires that the total amount of mass entering a control volume equal the total amount of mass leaving it। तो जितना वॉल्यूम आपका मैस आपका इन हो रहा होगा, चाहे वो मल्टीपल इनलेट से हो रहा हो या एक ही इनलेट से हो रहा हो, तो वो आपका क्या होगा जी, जितना आपका इन हो रहा होगा उतना ही आउट हो रहा होगा कंटिन्यूसली। यानी लेट्स सी मेरे पास अगर 2 kg पर सेकेंड इस इनलेट से इन हो रहा है, 3 kg पर सेकेंड इसलिए इनलेट से इन हो रहा है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट डी है वो 2 + 3 5 kg पर सेकेंड इस कंट्रोल एनवायरनमेंट में मैस जो है वो इन हो रहा है। तो इतना ही यानी 5 kg पर सेकेंड जो है वो इस आउटलेट से आउट भी होना चाहिए। तो फिर आपका जो बैलेंस है, मैस का बैलेंस है, वो स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस में अचीव होगा। फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस वी आर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मैस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दैट इज द मैस फ्लो रेट that is equal to mass flow rate in summation of mass flow rate in that is equal to summation of mass flow rate out। यूनिट्स इसके जो है वो किलोग्राम पर सेकंड के हैं, मल्टीपल इनलेट्स आर एग्जिस्ट, इसलिए आपकी समेशन है। अगर आपके पास सिंगल इनलेट्स हो या सिंगल स्ट्रीम्स हो तो आप सिंपल m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, यानी m1 आपका इनलेट मैस हो जाएगा और m2 जो है वो आपका आउटलेट मैस फ्लो रेट हो जाएगा। इसको आप इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। Many engineering devices such as nozzles, diffusers, turbines, compressors and pumps involve a single stream, only one inlet and one outlet। इसमें यूजुअली आपके जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी के केसेस में आपके पास सिंगल इनलेट और सिंगल आउटलेट होता है, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनमें आपके पास मल्टीपल इनलेट और मल्टीपल आउटलेट भी होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास स्पेशल केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो होता है जो आपका कंप्रेस नहीं होता, यानी कंप्रेशन अगर नहीं होगी तो जितना वॉल्यूम आपका इन हो रहा है उतना ही वॉल्यूम आपका आउट हो रहा होगा, कंप्रेशन उसमें नहीं हो रही होगी। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आपके लिक्विड्स आ जाते हैं यूजुअली, जिनको हम मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू कैरी कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से पर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपके लिक्विड्स जितने भी हैं वो इनकम्प्रेसिबल आएंगे। इनकम्प्रेसिबल के केस में क्या होता है जी, द कंजर्वेशन ऑफ मास रिलेशन कैन बी सिंप्लीफाइड इवन फर्दर व्हेन द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल व्हिच इज यूजुअली द केस फॉर लिक्विड। तो हम क्या कर सकते हैं कि आपका मास तो पहले कंजर्व हो ही रहा था, आप इसमें वॉल्यूम भी आपका कंजर्व होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, आपका जितना वॉल्यूम इनलेट पे आ रहा है उतना ही वॉल्यूम आपका आउटलेट पे आ रहा है। तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल के केस में। लेकिन कंप्रेसिबल के केस में चूंकि ये देखें इसके ये आपका जो कंप्रेसिबल का केस है इसमें एयर कंप्रेसर है, एयर इन हो रही है और एयर का जो इनलेट है उसका मैस फ्लो रेट आपका 2 kg पर सेकंड और वॉल्यूम फ्लो रेट आपका 1.4 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब ये आउट होता है तो उसका मैस फ्लो रेट 2 kg पर सेकंड ही रहता है, लेकिन आपका वो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो चुका होता है और वॉल्यूम इसका कम हो चुका होता है, दैट इज 0.8 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो जब कंप्रेसिबल की बात करेंगे तो उस केस में आपके पास
ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कि आपका वॉल्यूम भी कंजर्व हो रहा है, लेकिन इनकम्प्रेसिबल में आपका वॉल्यूम और मास दोनों कंजर्व हो रहे हैं. देयर इज नो सच थिंग एज अ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम प्रिंसिपल. इस वजह से आपके पास कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का प्रिंसिपल कोई नहीं होता. However, for steady flow of liquid, the volume flow rate as well as the mass flow rate remain constant since liquids are essentially incompressible substances. ठीक है जी. During a steady flow process, volume flow rate are not necessarily conserved, although mass flow rates are. तो ये वही बात है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लो वर्क एंड द एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड. इसमें क्या होता है जी, आपके पास अगर कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली, तो आपके पास फ्लो वर्क आएगा और उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी आएगी. तो इसको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो इस फिगर के जरिए ज़्यादा क्लियर हो सकता है. ये आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम है. इसके अंदर आपका ये वॉल्यूम जो है वो n होगा. ठीक है जी. आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते हैं, उसको इस बाउंड्री के थ्रू इन करवाते हैं. किस तरह से इन करवाते हैं? थ्रू दिस पिस्टन. इस पिस्टन के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं. फोर्स से क्या होगा, ये आगे मूव करेगा और ये वॉल्यूम आपका इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. अब जब आप ये इन करवाएंगे तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, एंड फोर्स इज इक्वल टू पी ए. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. उसी को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास फोर्स इज इक्वल टू पी ए बन जाता है. तो एफ जो यहाँ पे लग रही है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन multiplied by your pressure. Pressure is a known quantity for that specific amount of substance or that specific amount of liquid that we are going to introduce in the control volume. Flow work or flow energy, the work or energy required to push the mass into or out of the control volume is called the flow work or flow energy. तो जितनी हमें इसको यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या इसी अमाउंट को कंट्रोल वॉल्यूम से निकालने के लिए एनर्जी या वर्क हमारे पास जितना हमें रिक्वायर्ड होगा वो आपका फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी का लगेगा. दिस वर्क इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ कंटिन्यूस फ्लो थ्रू अ कंट्रोल वॉल्यूम. ठीक है जी. अब W फ्लो दैट इज इक्वल टू F और L. जो वर्क होता है आपके पास वो दो चीज़ों की प्रोडक्ट होती है. एक आपकी फोर्स आ रही होती है, दूसरा आपका डिस्टेंस कवर्ड आ रहा होता है. तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड एल है और फोर्स आपके पास दैट इज इक्वल टू पी ए. तो पी ए एल चूंकि आपका वॉल्यूम को लीड करता है तो पी वी के इक्वल भी लिख सकते हैं. तो वर्क फ्लो जो आपके पास वर्क फ्लो आएगा दैट इज इक्वल टू पी वी कैपिटल, या फिर अगर आप स्पेसिफिक वर्क फ्लो निकालना चाहें तो यहाँ भी मैथ से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी मैथ से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी मैथ से डिवाइड कर देंगे. तो स्पेसिफिक वर्क फ्लो इज इक्वल टू प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम. ठीक है जी. अब ये वर्क फ्लो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, इसको इनटेक दे रहे हैं सिस्टम के अंदर और आपका जो ये एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है ये कंट्रोल वॉल्यूम में इंट्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो चुका है. जब ये इंट्रोड्यूस हो चुका होगा तो आपके पास अगर एक्सेलरेशन जीरो यानी फ्रिक्शन ना हो इसकी वॉल्स के साथ, यहाँ पे और यहाँ पे फ्रिक्शन लेस इन्वायरमेंट हो, तो जितनी आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे होंगे उतनी ही फोर्स के साथ आपके पास ये पिस्टन आगे मूव कर रहा होगा. और ये कॉमनली फिनोमिना जो है वो हम हाइड्रोलिक्स में यूज कर रहे होते हैं. हाइड्रोलिक्स में जहां हम प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और यूजुअली क्रेन की जो लिफ्टिंग है और इस तरह के जितने भी कम फोर्स लगा के हम ज़्यादा हैवी चीज़ों को लिफ्ट अप कर रहे होते हैं, इसमें ये कॉमन फिनोमेना यूज हो रहा होता है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड. इसमें आपके पास दो केसेस होंगे जी. एक है नॉन फ्लोइंग का केस जब आपका फ्लो नहीं हो रहा, और एक है जब आपका फ्लो हो रहा. अब जब आपका पहला केस है जिसमें फ्लो नहीं हो रहा होता तो उसमें हमने पढ़ा था कि जी आपके पास जो स्पेसिफिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी प्लस स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी. और इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं. यहाँ पे मैथ्स नहीं आएगा, मैथ्स की वजह यह है कि हमने स्पेसिफिक लिया है तो मैथ्स कट जाएगा, इसलिए u प्लस वी स्क्र डिवाइडेड बाई 2 एन प्लस जी जेड. ठीक है जी. एम जी एच होता है या एम जी जेड होता है, उसको हमने चूंकि स्पेसिफिक है तो जी जेड आ जाएगा. ये है नॉन फ्लो का केस जब आपका पास फ्लो ना हो रहा हो. लेकिन जब आपके पास फ्लो हो रहा हो तो आपके पास बाउंड्री वर्क आएगा, और बाउंड्री वर्क हम
लेक्चर नंबर 10 में बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास जो बाउंड्री वर्क आता है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है जी। उस केस में थीटा इज इक्वल टू एनर्जी के साथ आपके पास बाउंड्री वर्क ऐड हो जाएगा, एनर्जी प्लस बाउंड्री वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी इसे कहते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्लस योर एनर्जी दैट इज यू प्लस यही वाला जो पूरे का पूरा एनर्जी का एक्सप्रेशन है इसको यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो u प्लस पी वी दैट इज इक्वल टू एच, तो हम इन दोनों की जगह पे h प्लस के ई प्लस पी ई को लिख सकते हैं और फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपको लीड करेगी h प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी जेड। तो ये आपका एंथैल्पी का रिलेशन है जिसको हमने ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन किया था कि एंथैल्पीज को किस तरह से एनर्जी के साथ रिलेट किया जाता है, तो हम इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। जब आप H को रिलेट कर देते हैं या PV को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो आपके पास फ्लोइंग फ्लूइड का केस आ जाता है। फ्लोइंग फ्लूइड के केस में आपके पास फ्लो एनर्जी आ जाती है जो PV है, काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, इंटरनल एनर्जी U रहती है, पोटेंशियल एनर्जी GZ होती है। द टोटल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स फॉर नॉन फ्लोइंग फ्लूइड एंड 4 पार्ट्स फॉर flowing fluids. The flow energy is automatically taken care of by enthalpy. In fact, this is the main reason for defining the property of enthalpy. ठीक है जी, enthalpy जो है वो किस तरह से, जब भी आप फ्लो का केस फ्लोइंग फ्लूइड का केस डिस्कस करेंगे तो उसमें enthalpy इनकॉर्पोरेट होगी, लेकिन अगर आपके पास फ्लो नहीं हो रहा, नॉन फ्लोइंग फ्लूइड है, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जी है एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय मैस, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट ई मैस। मैस के थ्रू अगर आपकी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो आपके पास फ्लोइंग फ्लूइड का केस आएगा और उस केस में आपके पास थीटा होता है। एम थीटा से मुराद आपके पास, अगर आप स्पेसिफिक थीटा हमने पहले स्पेसिफिक निकाला था पर यूनिट मैसेज के साथ निकाला था, लेकिन अगर आप इसको मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाए। ठीक है जी, स्पेसिफिक एनर्जी नहीं होगी बल्कि अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाए। तो एम थीटा दैट इज इक्वल टू एम थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अगर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट आप निकालना चाहें तो आप टी के साथ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास मैस फ्लो रेट आ जाएगा, बाकी थीटा की वैल्यू वैसे की वैसे ही रह जाएगी। यूनिट जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे, किलो जॉल एनर्जी का यूनिट होगा, जब आप टी से डिवाइड कर देंगे तो किलो वॉट आ जाएगा जो कि पावर का यूनिट होगा। ठीक है जी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट दैट इज पावर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट दैट इज योर एनर्जी। ठीक है जी। When the kinetic and potential energy of a fluid stream are negligible, then we can say that आपके पास ये और ये negligible हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि E mass जो आपका amount of energy being transported with the help of mass that is equal to mh। अगर आप रेट की टर्म में बात करें तो mass flow rate और h enthalpy आ जाएगी। When the properties of the mass at each inlet or exit changes with time as well as over the cross section, अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन और टाइम के साथ दोनों में चेंजेस आ रही हो तो आप इसको इस तरह से भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, यही एक्सप्लेन इस जो हमारे पास डायग्राम है उसमें द प्रोडक्ट m डॉट आई थीटा आई इज द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड इनटू कंट्रोल वॉल्यूम बाय मास पर यूनिट टाइम। मैस पर यूनिट टाइम आपके पास है, एनर्जी आपके पास है, जब आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप एनर्जी आपकी कितनी पर यूनिट, एनर्जी का रेट कितना ट्रांसपोर्ट हुआ है इस कंट्रोल वॉल्यूम में, वो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टेडी फ्लो सिस्टम्स। स्टेडी फ्लो सिस्टम में आपके पास जितना मैस इन हो रहा था उतना ही मैस आउट हो रहा था। ठीक है जी। अब जब हम बात करते हैं मैनी इंजीनियरिंग सिस्टम सच एज पावर प्लांट्स ऑपरेट्स अंडर स्टेडी कंडीशन। पावर प्लांट जो होते हैं उसमें आपकी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है वो इन हो रही होती है और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो आउट हो रही होती है। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आपके पास उतना ही मैस जो है वो कंजर्व हो रहा होता है। मैस इन कंट्रोल वॉल्यूम, mass of control volume remains constant and energy of control volume remains constant। mass जो है वो आपके पास आउट हो रहा था। इससे पिछली स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप mass के थ्रू एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर इंट्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है अंडर स्टेडी फ्लो कंडीशंस।
तो क्या बनेगा जी हमारे पास जी, अंडर स्टेडी फ्लो कंडीशंस द mass and energy content of a controlled volume remains constant। ठीक है जी, अंडर स्टेडी फ्लो कंडीशन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट एन इनलेट और एग्जिट रिमेन कांस्टेंट, डो नॉट चेंज। जितनी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे आपकी प्रॉपर्टीज उतनी ही रहेंगी, चाहे आप इसके इनलेट्स को बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं। ठीक है जी, अगर आप इनको कांस्टेंट रख रहे हैं तो आपके पास लेट्स सी, अगर मेरे पास अभी क्या है जी कि एक इनलेट है और दो आउटलेट है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको दो इनलेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा हाफ हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा। इसी तरह से मैस ऑफ हो जाएगा, मैस ऑफ होगा तो एंथैल्पी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो फ्लो रेट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब मैं दूसरा जो इनलेट है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो हाफ मैस यहाँ से इन होगा, सेम इस तरह से एंथैल्पी जो कैरी करेगा वो भी हाफ होगी, कंट्रोल वॉल्यूम में इन हो जाए। लेकिन आपके पास जो रिजल्टेंट है वो ये है कि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आपके पास मैस भी कांस्टेंट होता है और उसके साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो भी आपके पास कांस्टेंट रहती है। तो मल्टीपल इनलेट और मल्टीपल आउटलेट्स का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा होता। ठीक है जी, मैस एंड एनर्जी बैलेंसेस फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेस। जब आपके पास स्टेडी फ्लो प्रोसेस हो उसके लिए आप मैस और एनर्जी बैलेंसेस को किस तरह से लिखते हैं, समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैसेज इन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेट ऑफ समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैसेज आउट। सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, जब आपके पास एक ही इनलेट और एक ही आउटलेट हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में आते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, ये हीटर है। हीटर में क्या होता है कि आप मैस, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मैस जो है इस कंट्रोल वॉल्यूम में, जो हॉट वाटर टैंक होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट के साथ या फिलामेंट के साथ हीट अप कर रहे होते हैं, यानी आप डब्ल्यू इन जो वर्क फ्लो रेट है, इलेक्ट्रिक वर्क फ्लो रेट इन है, वो आप इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू या हीटिंग एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे इस कंट्रोल वॉल्यूम में इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। अब आप क्या करते हैं कि जी ये एक स्पेसिफाइड कंट्रोल वॉल्यूम है, अब आप इसमें मैस या ठंडा पानी जो है वो इंट्रोड्यूस, कोल्ड वाटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेट्स सी मैं 5 kg पर सेकेंड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो कुछ हीट लॉसेस भी बाहर जा रहे होंगे क्यू आउट की फॉर्म में, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा होगा यहाँ पे मेरे पास 5 kg हॉट वाटर एवेलुएट हो रहा होगा। तो होगा क्या, इनफैक्ट आपका ये जो वाटर इन होगा ये इसमें एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी एनर्जी वो आएगी कहाँ से, यहाँ से कंटिन्यूसली आ रही होगी। कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी वही रहेगी, लेकिन आपके पास ये हीटिंग एलिमेंट इस कंट्रोल एनवायरनमेंट की एनर्जी को या टेम्परेचर को बढ़ा रहा होगा कंटिन्यूसली। तो अगर आप यहाँ से ये बंद कर देते हैं तो रिजल्टेंटली क्या होता है कि बाज़-औक़ात जैसे पहले होता था, जो कन्वेंशनल हीटर्स होते हैं उसमें आपका बॉयलिंग या हॉट वाटर टैंक जो है वो बाज़-औक़ात उसमें एक्सप्लोजन भी हो जाता था, वो फट भी जाता था। उसकी वजह यही होती थी कि आपका अंदर प्रेशर ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाता था, आप फ्लो को बंद कर देते थे। फ्लो को कंटिन्यूसली बंद नहीं किया जाता, कंटिन्यूसली इसको चलाया जाता है। अगर आप फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया गया कि आपने ऐसी लूप्स जनरेट कर ली कंट्रोल एनवायरनमेंट के जो एसोसिएटेड होती थी कंट्रोल वॉल्यूम के साथ, ऐसे कंट्रोल्स को एवेलुएट कर लिया जो ऑटोमेटिकली फ्लो को बंद दोनों साइड से कर देते। ठीक है जी, तो ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ हीटिंग है। इसको किस तरह से एवेलुएट किया जाता है, किस तरह से हम एनर्जी बैलेंस के टर्म में लिख सकते हैं। एनर्जी बैलेंस इज बेसिकली योर रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of energy in minus rate of energy out, rate of net energy transfer by heat, work or mass is equal to change in the energy of system with respect to time. If we are going to have the steady flow case, then this term is going to be 0, so right side is equal to 0, so we can write that E in is equal to E out, rate of net energy transfer in by heat, work and mass is equal to rate of net energy transfer out by heat or work or mass। तो इसको हम इन के केस में हमारे पास क्या आ रहा है जी, क्यू इन डॉट होता है प्लस डब्ल्यू इन डॉट होता है, और ये आपके पास चूंकि फ्लूइड है इसलिए आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, इज इक्वल टू क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट एंड दिस इक्वेशन। ये आउट के पैरामीटर्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ये इन के पैरामीटर्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एनर्जी बैलेंस रिलेशन विद साइन कन्वर्जन। जब आप साइन कन्वर्जन की बात करते हैं तो उसमें हीट इनपुट एंड वर्क आउटपुट आर पॉजिटिव, हीट इनपुट माइनस डब्ल्यू आपके पास, ये आपके पास जब आप साइन कन्वर्जन को यूज कर रहे होते हैं तो इस वक्त आप इस तरह से इसको राइट डाउन करते हैं। तो आपके पास
रिजल्टेंटली क्या बनता है कि जी हीट इन के साथ आपके पास सारे के सारे इनलेट के पैरामीटर्स एसोसिएट हो जाते हैं और आउट के साथ आपके आउट के पैरामीटर्स एसोसिएट हो जाते हैं। फॉर ईच एग्जिट आपके पास ये आ रही होगी, जो एनर्जी आपके पास मैस की वजह से ट्रांसफर हो रही है वो ये आ गई, माइनस जितनी आपके पास एनर्जी मैस की वजह से इन हुई थी वो आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू क्यू इन माइनस डब्ल्यू, क्यू इन माइनस क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डॉट एच टू माइनस एच वन, और साथ में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन में अगर आप वेलोसिटीज को और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दें तो आपके पास रिजल्टेंटली क्यू स्मॉल क्यू माइनस डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन। और ये किस तरह से बने हैं, हमने एम डॉट को यहाँ पे आगे डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करने के बाद उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है क्यू स्मॉल और एम डब्ल्यू स्मॉल किस तरह से। व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी changes are negligible, then we can simply write that q minus w is equal to h2 minus h1। तो flowing fluid जब आप होगा और आपने कुछ जब हम पढ़ेंगे रैंकिन साइकिल में आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट जहाँ पे वर्क परफॉर्म हो रहा था, और कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जहाँ पे आपका हीट सप्लाई आप दे रहे होते हैं। जैसे बॉयलर है, बॉयलर में आप हीट सप्लाई दे रहे होते हैं, जो पंप है वहाँ पे आपका इनपुट पर जा रहा होता है। तो जब आप टरबाइन की बात करते हैं, टरबाइन में आपको वर्क आउटपुट मिल रहा होता है। तो ये जो जनरल आपके पास ये एक्सप्रेशन बना है, इसको फर्दर आप थर्मोडायनेमिक्स 2 में आगे हीट एंड मास ट्रांसफर में, पावर प्लांट्स में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज करेंगे। यानी आप इंथैल्पी के दो चेंजेस हैं, कोई भी एक लाइक इक्विपमेंट हमारे पास टरबाइन है, टरबाइन की इनलेट और आउटलेट की जो इंथैल्पीज होंगी उनके डिफरेंस को आप सिंपली ये लिख देंगे कि ये वो किसके इक्वल होंगे, वो जो टरबाइन ने वर्क किया है उसके इक्वल होंगे। और वो वैल्यूएट किस तरह से होता है, उसको हमने किस तरह से ड्राइव किया है वो पिछली पूरी स्लाइड और इस स्लाइड के शुरू में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी। अब सिंपल क्या जी, अंडर स्टेडी ऑपरेशन शाफ्ट वर्क एंड इलेक्ट्रिक वर्क आर द ओनली फॉर्म ऑफ अ वर्क ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम में इन्वॉल्व। शाफ्ट वर्क या इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो कॉमन इनलेट के मेथड्स होते हैं, वर्क इनलेट के मेथड्स होते हैं। ठीक है जी, तो स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये समरी है जी जो हमने इस लेक्चर में कवर किया। कंजर्वेशन ऑफ मैस को कवर किया, मैस एंड वॉल्यूम फ्लो रेट्स किस तरह से होते हैं, एवेलुएट किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं वो देखा गया। मैस बैलेंसेस फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस, मैस बैलेंसेस फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो को पढ़ा गया। उसके बाद फ्लो वर्क एंड एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड को पढ़ा गया, एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय मैस पढ़ा गया। फिर उसके बाद एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ स्टेडी फ्लो सिस्टम्स को ऑब्जर्व किया गया। So that is all for lecture number 11, and we will meet inshallah in lecture number 12. Thank you very much.